رمضان کے 12 روز سے سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ صرف 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ ماہ رمضان کا مہینہ کیونکہ عظمت اور برکت کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ آج رمضان کا 12 روزہ اور ہفتہ کا دن ہے۔ سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، عورت جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھے گی، اس کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، اس گھر کا بچہ بیچارہ پتی بن جائے گا، اس گھر سے فاقوں کا، غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ احوال ماہ رمضان کا مہینہ ہر کسی کے لیے برکت بن کر، رحمت بن کر آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ وہ رمضان کے مہینے میں ہر گھر میں خوشیاں، رحمتیں، برکتیں آ جاتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہر گھر کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ صبح سحری میں رونق، شام افطاری میں رونق، سارا دن بندہ نیکیاں کرتا ہے، روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں اپنے ہاتھ، اپنی آنکھوں، اپنی زبان سے گناہوں کو کرنے سے بچتا ہے۔ اور رب کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ جو بندہ صبح سحری کے لیے اپنی نیند قربان کرتا ہے، پھر رب کی رضا کے لیے سحری کرتا ہے، پھر نماز فجر کے بعد سارا دن ذکر اذکار کرتا ہے اور تمام نعمتوں کی نعمتیں آپ کے موجود ہونے کے باوجود اجتناب کرتا ہے، رب کے خوف سے افطاری کا انتظار کرتا ہے اور افطاری کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے، اے میرے بندے، میں راضی ہوں، فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو روزہ رکھتا ہے، جو رمضان کے مہینے کو خلوص نیت کے ساتھ ذکر اذکار و عبادت میں گزارتا ہے۔ آج رمضان کے 12ویں روز سے ایک ایسا عمل لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اگر کوئی بندہ رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ غیب سے رزق و دولت کا مالک ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، تو رمضان کے 12ویں روزے ہفتے کے دن سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ سورہ کوثر اور رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی رب سے مانگنا ہی نہیں آیا، کیونکہ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب رب دے رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ رجب رب کا مہینہ گزر چکا ہے، بہت سے لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ شب معراج آئی، لاپرواہی میں گزاری۔ شعبان کا مہینہ آیا، لاپرواہی میں گزارا۔ شب برات بھی لاپرواہی میں گزار دی۔ اللہ والو، ہماری اس لاپرواہی نے ہمیں اس دورا پر کھڑا کر دیا ہے کہ آج ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ مہنگائی ہوئی ہے، لیکن رحمت تو رب کی طرف سے ہے، رزق تو رب کی طرف سے ہے۔ اگر آپ مہنگائی کے ساتھ اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آج ابھی اسی وقت لاپرواہی کو چھوڑ کر رمضان کے مہینے کی قدر کیجیے۔ رمضان کے مہینے میں رحمتیں، برکتیں چماچم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ جھولی پھیلا کر مانگ لیتا ہے بھیکاری، فقیر بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ رب کی ذات 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں لا رکھتی ہے۔ آج رمضان کی 12 تاریخ ہفتے کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ کی آسانی کے لیے سکرین پر دکھایا، کیونکہ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے کبھی کسی قسم کی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اگر آپ کو وظیفے کی سمجھ نہ آئی یا آپ کو وظیفہ پڑھنا نہ آیا تو یہ موقع ایسی سزا دے گا، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آپ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن رمضان کے 12 تاریخ ہفتہ کے دن جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص حاجت کو لے کر پڑھا جاتا ہے، پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آتی ہے، اور اس مہینے میں رب خود دے رہا ہے۔ ایک وہ وقت ہے، ہم پورا سال مسجدوں کے چکر لگاتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، قیام کرتے ہیں، جیل پیروں فقیروں کے چکروں میں ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور آج جب رب کی ذات خود فرما رہی ہے، رمضان کے مہینے میں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو بندہ رمضان کے مہینے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ رمضان کی 12 تاریخ کو یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ صبح سحری میں کر لیں، آپ نماز فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء، حتیٰ کہ رات 9، 10، 11 بج جائیں، وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، کیونکہ رمضان کا 12واں روزہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور یہ خوشیاں لے کر آتا ہے، کامیابیاں لے کر آتا ہے، رحمتیں برکتیں لے کر آتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے،
जब आपके मुल्क में 12 रमज़ान हफ्ता का दिन आ जाए तो आपने इस अमल को कर लेना है। इंशाल्लाह 12 रमज़ान से इस दिन आपने ये वजीफ़ा सिर्फ 7 बार पढ़ेंगे। और अगर कोई बंदा 1 मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकता, अगर आप पूरे साल के रिस्क दौलत कामयाबी के लिए 12 रमज़ान हफ्ते के दिन सिर्फ 1 मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकते तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जो बंदा 1 मिनट अपने पूरे साल के रिस्क के लिए, अपने पूरे साल की तंगी के लिए, अपनी हर हाजत को पूरा कराने के लिए रब के सामने ये वजीफ़ा पढ़ने नहीं बैठ सकता, वो क्या कामयाब होगा। अल्लाह वालों, खुदा का खौफ कीजिए। सहाबा करम फरमाते हैं कि अगर इंसान को मालूम हो जाए कि रमज़ान की कितनी बरक़ात हैं, रमज़ान का महीना कितनी अज़मत वाला महीना है, इस महीने की कितनी फ़ज़ल व बरक़ात हैं, तो हम अपनी दुकान, दफ्तर, कारोबार बंद करके बैठ जाएं और रमज़ान के महीने में पहाड़ों की तरफ निकल कर तन्हाई में बैठ कर रब को राज़ी करें। उस महीने में अगर कोई बंदा ख़जाने भी मांगेगा तो मिल जाएंगे। उस महीने में हर शय कबूलियत आपके कदमों में ला कर रखी जाती है। अगर कोई बंदा रब के कमालात को, मौजज़ात को देखना चाहता है, रमज़ान के ख़जानों को लूटना चाहता है, रमज़ान में अपनी हर हाजत को, दुआ को कबूल कराना चाहता है, तो आज 12 रमज़ान हफ्ते के दिन पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए सिर्फ 1 मिनट का ये वजीफ़ा पढ़िएगा और जिसकी जो भी हाजत है आज मांग लीजिएगा। आप रब करीम से बेऔलाद हैं, औलाद के लिए पढ़ लें, बेरोज़गार हैं, रोज़गार के लिए पढ़ लें, कर्ज की दिल से निकलने के लिए पढ़ लें, घर में सुकून और बरकत के लिए पढ़ लें। दुनिया की बड़ी सी बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। सिर्फ 12 रमज़ान के हफ्ता के दिन ये वजीफ़ा एक बार पढ़ने की देर है। मेरा रब इतनी नवाजेगा जिस महीने में एक नेकी का बदला 70 गुना ज़्यादा हो जाता है। उस महीने में रब की ज़ात आपकी हाजत को कितनी बरकत से नवाजेगी, आपको कितने मालो दौलत से नवाजेगी। बड़ा खुशकिस्मत है और मुकद्दर वाला है वो बंदा जो रमज़ान की 12 तारीख को हफ्ते के दिन ये ख़ास अमल पढ़ेगा। अल्लाह वालों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक न्यू हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूँगा। 12 रमज़ान हफ्ते के दिन आप ये वजीफ़ा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। सबसे पहले 12वें रोज़े की मैं खसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूँगा, आपने आमीन ज़रूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। आए मेरे मालिक को मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज जो कोई बेरोज़गार है, बे औलाद है, तंग दस्त है, लाचार है, मौला तू दिलों के राज खूब बेहतर जाने वाली ज़ात है। रमज़ान की बरकत से, रमज़ान की रहमतों से, बरकतों से माला माल फरमा। आज बेरोज़गारों को रोज़गार, बे औलादों को औलाद और हर मसले का हल फरमा दे। मौला तेरी एक कुन के मोहताज हैं, हमारी पूरी ज़िंदगी का नसीब बदल जाएगा, पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा। मौला आज तेरी बारगाह में फ़कीर बन कर बैठे हैं, बादशाही अता फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन आमीन। मुझ समेत हम सब की नेक जायज़ हजात को गैबी ख़जानों में से पूरा फरमा। आमीन या रहमत लिल आलमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में आमीन के साथ अपना पूरा नाम ज़रूर लिखिएगा। पता नहीं किसकी आमीन कबूल हो जाए और आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। अल्लाह वालों, आप चलते हैं वजीफ़े की तरफ। ये रमज़ान के 12वें रोज़े का ख़ास अमल है। छोटा सा अमल है लेकिन कमालात, इतनी फजीलत और बरकत है कि पढ़ने वाला जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, रब की ज़ात फ़ौरन अता फरमाती है। सबसे पहले आपने बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दरूद इब्राहीम पढ़ लें। पढ़ना सिर्फ एक बार है। इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, आप 12वें रोज़े की ख़ास अमल बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ख़ास है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग वीडियो को स्किप और काट काट कर देख रहे हों, लेकिन अब आपकी छोटी सी गलती, कोताही, वजीफ़ा स्किप या काट कर देखने से अमल की कोई ख़ास बात या वजीफ़े का कोई हिस्सा छूट गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आज इस वीडियो को मुकम्मल देखना। मेरे बताने में वक्त लगेगा लेकिन आप सिर्फ 1 मिनट के अंदर इस अमल को पढ़ लेंगे। आज गलती की, आज की लापरवाही पूरे साल का पछतावा बन जाएगी, क्योंकि ये आज
12 रमज़ान का आखिरी मौका है, ये वजीफ़ा किसी सूरत ना छोड़ना। एक बार सवाब की नियत से दुरूद पाक पढ़ कर वजीफ़े का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप बेरोज़गार हैं, रोज़गार मांग लें। आप बे औलाद हैं, औलाद मांग लें। आप अमन पसंद, नौकरी, शादी, कारोबार, तरक्की, अरूज, कामयाबी, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए आप ये वजीफ़ा, आप ये अमल कर सकते हैं। लेकिन आज रब करीम से मांगते वक्त हिचकिचाना मत। आप किसी बंदे से नहीं, आप रब करीम से मांग रहे हैं जिसके ख़जाने कभी ख़त्म नहीं होते। आज एक बार मांगोगे 70 गुना ज़्यादा दिया जाएगा। सबसे पहले मकसद की नियत करने के बाद आज हर नामुमकिन मुमकिन हो जाएगी। फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर वजीफ़े का आगाज़ करना है और फौरी तौर पर आपने अपनी आँखों को बंद कर लेना है। यूँ महसूस कीजिए कि दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म, आप रब करीम के प्यारे हजूर बैठे हैं। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा एक ऐसे रख आज़म है। रब की एक ऐसी सिफत का वजीफ़ा है जिसको पढ़ते साथ ही रास्ते बन जाते हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, मुश्किलात हट जाती हैं, परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, बंधें टूट जाती हैं। अब आपने पढ़ना है या कहारू या जबारू का मतलब क्या है कि गैब से असबाब बनाने वाली ज़ात, गैब से रास्ता बनाने वाली ज़ात, गैब से मदद बेचने वाली ज़ात, गैबी फरिश्तों की मदद चाहते हो तो रमज़ान के 12वें रोज़े पहले नंबर पर आपने इसको पढ़ना है। जब कोई बंदा रमज़ान के महीने में या कहारू या जबारू पढ़ता है तो रब की ज़ात अपने नाम या कहारू या जबारू के तौफ़ैल इतने रास्ते बनाती है, बिगड़े काम संवर जाते हैं। आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। आप जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती है। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज 12 रमज़ान हफ्ते के दिन या कहारू या जबारू को पढ़ कर देख लीजिए। आज तक आपने सिर्फ सुना होगा कि रब की ज़ात जब देती है छप्पर फाड़ कर देती है। अगर आपको किसी मकसद में कामयाबी की समझ नहीं आ रही तो आप रब पर अपने तमाम मुश्किलात, परेशानियां, मसाइल को रब के हवाले करते हुए रमज़ान के महीने में रहमत के अशरे में 12वें रोज़े सिर्फ 11 बार या कहारू या जबारू पढ़ कर देख लें। 11 बार या कहारू या जबारू पढ़ते ही आप खुद ब खुद कामयाबी की तरफ चले जाएंगे। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। फरिश्ते आपका इस्तकबाल करेंगे। आप रब करीम से जो मांगेंगे रब की ज़ात उतना नवाजेगी कि दोबारा कभी आपको और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना ख़ास अमल है जिसको यकीन नहीं आता वो रमज़ान के 12वें रोज़े सिर्फ 11 बार या कहारू या जबारू को पढ़ कर देख ले। या कहारू या जबारू इंशाल्लाह सिर्फ 11 बार या कहारू या जबारू पढ़ते ही हर तरह के मसाइल का हल, हर तरह की परेशानियों का ख़ात्मा हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। अल्लाह वालों यकीन कामिल के साथ ये वजीफ़ा पढ़ लेना। मौका आज जिसको मिलेगा, आज 12 रमज़ान के दिन जो बंदा या कहारू या जबारू पढ़ेगा खुशकिस्मत है, मुकद्दर वाला है वो बंदा जो आज 12 रमज़ान हफ्ते के दिन या कहारू या जबारू को पढ़ेगा। या कहारू या जबारू 11 बार तवज्जो से पढ़ना, क्योंकि अगर जो बंदा तवज्जो से पढ़ेगा, अगर उसकी आंखें नम हो जाएं, आपको कोई इशारा हो जाए, दिल में रात सुकून मिल जाए तो समझ लो कबूलियत हो चुकी है। ये इशारे, ये निशानियाँ उसी को मिलती हैं जो तवज्जो के साथ वजीफ़ा पढ़ता है। ये रमज़ान के महीने के ख़ास अमाल हैं, ये कोई बने बनाए वजीफ़े नहीं। ये ऐसे मस्तानद और मजरब अमाल हैं जिसे पढ़ने के बाद रब की ज़ात बैठे बैठे तकदीर के बंद तालों को खोल देती है। इसको बताया गया तरीके और तरबियत से 11 बार पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये सूरत यासीन का वजीफ़ा है। आपने सूरत यासीन को पढ़ना है। अल्लाह वालों, सूरत यासीन को आपने 7 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप इसे फ़ौरन पढ़ कर जान छुड़ा लें। आपने 7 बार सूरत कौसर को ऐसी मोहब्बत के साथ पढ़ना है, इसका यकीन कामिल के साथ पढ़ना है कि जब जब आपकी ज़बान से सूरत यासीन निकल रही हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब करीम से मांगते चले जाएं। आपने सूरत यासीन को 7 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 बार हो गया। इसी तरह से आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह यासीन को मुकम्मल सिर्फ 7 बार पढ़ना है।
7 बार सूरह यासीन पढ़ने से 7 आसमानों और ज़मीनों का रिज़्क़ आपके कदमों में आ जाएगा। फरिश्ते आसमानों से ज़मीन पर रहमतें बरकतें लेकर आ जाएंगे। ये रमज़ान का महीना है, ये रहमत का अशरा है। आज रमज़ान के 12वें रोज़े अपनी तमाम दुखियारी बहनों को, बेटियों को, माओं को, बुज़ुर्गों को एक ऐसा मस्तानदा और मजरब अमाल दे दिया है। अगर कोई बंदा कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी हजात पूरी नहीं होती, मुझे वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, तो आज एक बार ये वजीफ़ा पढ़ कर देखिएगा। अगर 1 मिनट निकाल कर आप ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकते तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारेंगे। अगर आपको मालूम हो जाए कि रमज़ान के महीने की कितनी कदर कीमत है, आप दुकान, दफ्तर, कारोबार छोड़कर पहाड़ों में निकल जाएं और हर वक्त रब करीम को राज़ी करने में लग जाएं। रमज़ान वो महीना है जो पूरे साल की खुशियां बांटने आता है, पूरे साल का रिस्क बांटने, पूरे साल की सेहत और सलामती बांटने आया है। और जो बंदा इस महीने की कदर करता है, पूरा साल खुशियों से, रहमतों से, बरकतों से माला माल रहता है। आज आपने सूरत यासीन को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 7 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरत यासीन पढ़ते साथ ही अगर आप 7 हजात को, 7 ऐसी हजात जो नामुमकिन है, नियत करके बैठोगे तो 7 की 7 नामुमकिन हजात मुमकिन हो जाएंगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 7 बार सूरत यासीन पढ़ने से मिल जाएगा। अल्लाह वालों, रमज़ान के महीने में रब की ज़ात फरमाती है, तुम मांगने वाले बन जो, मैं तुझे इतनी नवाजूंगा कि तेरी नस्लें आबाद हो जाएंगी। एक वो वक्त है जब रब से बंदा मांगता है, वो आज वक्त है। इंशाल्लाह सिर्फ ये 11 बार या कहरु या जबारू पढ़ते दौरान आप रब करीम से जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, रब की ज़ात झोलियाँ बार बार कर नवाजेगी और इतना नवाजेगी कि दोबारा कभी और किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा रब इतनी रहमान है, रहीम है, करीम है, जब देने पे आता है तो छप्पर फाड़ कर अता फरमा देता है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता। बड़ा खुश किस्मत है, मुकद्दर वाला है वो बंदा जो आज 12 रमज़ान हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा पढ़ेगा। आज मैंने रमज़ान के 12वें रोज़े का बुज़ुर्गों का बताया हुआ अमल बताया, बुज़ुर्गों के बताए गए तरीके से पढ़ना बताया। अब मैंने अपना हक अदा किया। अब आपकी मुश्किलात, परेशानियां से, इन मुसीबतों से, इन मजबूरियों से, इन लाचारों से हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़ाना चाहते हैं तो रमज़ान और मुबारक के 12वें रोज़े सिर्फ़ और सिर्फ बताए गए तरीके से पढ़ कर देखिएगा। आप तो क्या, आपके घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा, आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी। ये 3 अमाल बताए गए तरीके और तरबियत से पढ़ते दौरान जो मांगोगे, जितना मांगोगे मिल जाएगा। इसलिए अपने मकसद की नियत करके मांगना। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर उतना ही दरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूँगा। मिलते हैं किसी और नए वजीफ़े के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।